Okay guys, now अब start करते हैं from the chapter number first, getting started with Red Hat Enterprises Linux. In this chapter, we have to learn about to what is Linux and all. Why should we learn the Linux? Okay, Linux is the critical technology for the Linux professional understanding. Yeah, it is, but it is very beneficial. Why it is? Why we learn Linux? Okay, the window used to need to interrupt with Linux as we see here. Okay, the application development, Linux stores application runtime. Yeah, in the cloud computing, the cloud instance, public private cloud environment use the Linux operating system as an environment, right? Okay, the mobile application is also that's we call the IoT, Internet of Things. Okay, Internet of Things, IoT. Okay, the character high operating system would be device use Linux. Okay, our Android applications Linux, cloud computing instance Linux, and if you're looking for the new opportunity in the IT, you have to know regarding the Linux in a highly divided is. Okay, Linux is just operating system. It's a open source and the CLI based. It means to say the command line. In the Windows, you know about very well how to do work in the all about the graphics. Okay, from the if you want to create a folder, you just click on the right click and go to new and folder. Control Shift and that is the folder. Okay, but in the Linux, you have to write the meaningful command like mkdir, make directory. Okay, they all about the commands. Okay, if you know the commands, you are best in Linux. If you don't know the commands, you don't know about that. That is the thing. In the Red Hat Enterprises Linux, the first there's the Fedora. As we discussed, the Fedora is a community project. Fedora हमारा एक community project है जिसके बारे में हमने पहले बात भी की थी, राइट? ये फ्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है? एज एन एप्लीकेशन टेस्टिंग पर्पज से हम उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करा सकते हैं, दैट्स इट. दिस नो देयर इज अ सिक्योरिटी एंड द मेजर ड्रॉबैक इज द एवरी 6 मंथ, जैसे कि हमने कल बात की थी कि हर 6 महीने में ये क्या करता है कि अपडेट दे देता है. तो सिंपल सी बात है कि हम सिनेरियो कैसे स्विच करेंगे, ये यूज नहीं कर रहे. देन वी हैव अ CentOS. In a CentOS we have a self support, errata notification, package updates provide. Okay, in a Red Hat Enterprises Linux and the comparison of CentOS, it is 24 into 7 support in a critical situation from the Red Hat team. Okay, RAID issue, they all of the things, any kind of issue, 24 into 7 Red Hat supported. But at the enterprises level, it's paid. You have to purchase a subscription, and after it, you are able to do that. Guys, is that clear? Hello, guys, please respond me yes or no. Yes, Yes, sir. sir. Okay, no, that's a good. That's why in this chapter only the Red Hat Enterprises and the US Fedora, something like that. These types of things. Now here they're asking the command lines. In this chapter, we have to learn how to access the command line. Command line, it means to say that what is shell. Okay, how to execute the command on that. Basically, shell क्या होता है, commands कैसे run करते हैं, these types of things. Introduce to bash shell. Guys, bash shell क्या होता है? एक text based interface है जिसके ऊपर हम अपनी commands को run करते हैं. Shell is just like a platform. एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम अपनी कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं, उसे हम शेल कहते हैं, ठीक है? यूजर एट द रेट होस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? यूजर एट द रेट होस्ट और उसके आगे डॉलर लगा है. इसका मतलब क्या है? ये इसके आगे जो है ना, ये बैश शेल है. दिस इज आवर द बैश शेल. ये शेल है जहां पे हम अपनी कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं. इज जस्ट लाइक अ बाउंड्री, ये कह सकते हैं, एक इन्वायरमेंट, एक प्लेटफॉर्म कह सकते हैं जिसके ऊपर हम अपनी कमांड्स को रन कराते हैं, ठीक है? यूजर एट द रेट होस्ट, इट मीन्स टू से दैट अभी मेरे सिस्टम से कौन लॉगिन है? यूजर. यूजर लॉगिन है एट द रेट होस्ट, मेरे सिस्टम का नाम है. ओके यहाँ पे डॉलर है, इट मीन्स टू से दैट ये मेरा रेगुलर यूजर है जो डे बाय डे वर्किंग के लिए होता है, ठीक है? रेगुलर यूजर्स जो डे बाय डे काम करने के लिए होते हैं. जस्ट रूट एट द रेट होस्ट, इट मीन्स टू से दैट रूट इट्स अ सुपर यूजर, एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटर. अभी एडमिन मेरे से लॉगिन है एट द रेट होस्ट, मेरी मशीन का नाम, और हैश. हैश इट मीन्स टू से दैट दैट इज द सुपर यूजर, और डॉलर इट मीन्स टू से दैट इट इज अ रेगुलर यूजर. गाइस, इज दैट क्लियर द बोथ? Yes, sir. ओके, फाल्गुनी समझ आ रहा है आपको? Yes, sir. ओके, विशाल क्लियर है? Hello. हेलो विशाल. Yes, sir. Yes, sir. ओके,
bash shell to run the commands. There's a lots of object or options with that commands. Adjust the behavior of command, इसके लिए हमारे पास कुछ options है. इसका practically हम देखेंगे कि basically work कैसे चल रहा है. ठीक है. Then quiz. अब हम बात करेंगे इसकी accessing the command line using the desktop shell. ठीक है. डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है ये, जिसको हम लोग बोलते हैं जीनोम 3. ये ग्राफिकल इन्वायरमेंट है लिनक्स का, जिसको जीनोम 3 बोलते हैं. जीनोम उसका नेम है, जीनोम शेल जो प्रोवाइडेड करता है, और वर्जन 3 है, इसीलिए इसका नाम जीनोम 3 है. ठीक है. ये एक फंक्शनल इंटरफेस है, जैसे कि डेस्कटॉप होता है ग्राफिकली. ठीक है. ये लुक लाइक अ स्टैंडर्ड. जो रेलेट में दिया है वो स्टैंडर्ड थीम है, और जो रेल 7 में था उसे हम क्लासिक कहते हैं. राइट. ठीक है. ओल्ड वर्जन थे ग्नोम के, बट ये जीनोम 3 है, वर्जन 3. जीनोम में वर्जन 3 डेस्कटॉप दे रखा है. ये इसका डेस्कटॉप है. कल हमने डेस्कटॉप में देखा था, कल डेस्कटॉप के बारे में पढ़ा भी था. ये मेरी एक्टिविटीज है, दीस टाइप्स ऑफ. आज भी एक बार उससे गो थ्रू कर लेंगे. पार्ट ऑफ जीनोम शेल. यहाँ पे आप पार्ट ऑफ जीनोम शेल, जैसे कि कल हमने उस चीज को देखा भी था कि व्हाट इज द पार्ट ऑफ जीनोम शेल, ये पूरा पढ़ा था हमने. पावर बटन हो गया, टाइम एंड डेट हो गया, देयर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग. तो बुक में ना जाके मैं मैनुअली आपको स्क्रीन पे ही शो कर देता हूँ, जो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए. दिस इज माय जीनोम 3. रूट पासवर्ड दे दिया मैंने, रेड हैट, एंटर. चलिए, अब ये मेरा जीनोम 3 स्टार्ट हो रहा है. अभी जस्ट मशीन ऑन हुई है. इट्स आई थिंक इट्स विल टेक टाइम, नॉट मोर देन, ज्यादा टाइम नहीं लेगा. ठीक है. और क्या चीजें हैं तब तक देखते हैं, जब तक मशीन स्टार्ट है तब तक. जीनोम 3 के पार्ट्स हैं, वो हम कर डिस्कस कर रहे थे. उसके बाद हम चलते हैं डेट एंड टाइम, वही सारी चीजें, लॉग स्क्रीन, लॉग आउट, ऑल ऑफ द थिंग्स रिगार्डिंग ऑल पार्ट्स. एग्जीक्यूटिंग द कमांड यूजिंग द बैश शेल. बैश शेल क्या होता है? बिन बैश. बैश मेरा एक शेल होता है जहाँ पे यूजर अपनी कमांड्स को रन करता है. बैश शेल इज जस्ट लाइक अ एक प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर हमारे यूजर अपनी कमांड्स को रन कर रहा है. दैट इज दैट प्लेस जहाँ पे कमांड्स रन हो रही हैं. यहाँ पे इसे हम बैश शेल कहते हैं, इस जगह को. ठीक है. एक शेल एक इन्वायरमेंट है जहाँ पे यूजर मेरा लॉगिन होके इजीली अपने कमांड्स को रन कर पा रहा है. ठीक है. छोटी छोटी कमांड्स है. हु एम आई, कमांड 1, कमांड 2 कर रखा है. एग्जांपल ऑफ सिंपल्स कमांड में डेट दे रखा है. डेट होगा, कैलेंडर होगा, हिस्ट्री होगा, यही सारी चीजें हम देखेंगे. आज डीपली ना जाके एक गो थ्रू करेंगे ऊपर कि भाई छोटी छोटी कमांड्स शेल पे कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है. क्योंकि जिसको प्रायर एक्सपीरियंस है वो तो कर लेगा कि हमें पता है सर एग्जीक्यूट कैसे करते हैं रन पे. लेकिन जिसके लिए न्यूली है उनको टाइम लगेगा कि भाई बेस, उनके लिए जस्ट इन्वायरमेंट चेंज हो गया ना, फ्रॉम ग्राफिकल टू CLI आ गए, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है. तो इसीलिए हम छोटी छोटी कमांड्स पहले रन करेंगे, उसके बाद सिनेरियो बड़ा होता चला जाएगा. फॉर एन एग्जांपल गाइस, आप लोग को मेरा डेस्कटॉप विजिबल है? विजिबल है डेस्कटॉप? Yes, sir. Yes, sir. गाइस ये मेरी एक्टिविटीज हो गई, जहाँ पे मुझे एक्टिविटीज वगैरह मिलती है, जैसे फायरफॉक्स ब्राउज के लिए, फाइल्स, सॉफ्टवेयर्स, हेल्प, टर्मिनल जहाँ से मुझे सारी कमांड्स रन करने हैं, शो एप्लीकेशंस, मेरे जितने एप्लीकेशंस होंगे वो शो करेगा फिलहाल. यहाँ पावर बटन्स जिसकी हम बात कर रहे थे, वॉल्यूम नॉकर, वायर्ड कनेक्शन, मेरा कनेक्शन कनेक्टेड है. आई एम नाउ रूट से मैं लॉगिन हूँ, तो रूट यूजर दिखा रहा है. किसी अनदर यूजर से लॉगिन हो गए तो अनदर यूजर दिखाएगा. अगर आप चाहते हो लॉग आउट होना तो आप यहीं से लॉग आउट हो सकते हो. स्विच यूजर मतलब एक यूजर से दूसरे यूजर पे जाना. ठीक है. अकाउंट्स की सेटिंग देख सकते हो रूट की. पावर बटन कर सकते हो, पावर बटन करेंगे ऑप्शंस आएंगे एज इट इज. पावर बटन रीस्टार्ट ऑटोमेटिकली 60 सेकंड में ऑफ हो जाएगा, कैंसिल कर दिया. ठीक है. डेट एंड टाइम भी है, बहुत सारी चीजें, नोटिफिकेशन है. तो हम क्या स्टार्ट करेंगे, टर्मिनल स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है. टर्मिनल स्टार्ट करने के बाद हम इस पे छोटी छोटी कमांड्स एग्जीक्यूट करेंगे. जैसे कि टर्मिनल आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर, विजिबल है ना क्लियरली, और बड़ा करो. ठीक है. चलो ठीक है. रूट एट द रेट सर्वर ए लिखा है. अब क्या है, सर्वर ए जो मेरे मशीन का नाम है. रूट मतलब अभी मैं रूट से लॉग इन. हैश मतलब कि मैं अभी सुपर यूजर हूँ. गाइस क्लियर है कि कोई डाउट चल रहा Sir. है? हाँ जी. Yes, sir. ओके, क्लियर है कि कोई डाउट है? Clear है. ठीक है.
रूट एट द रेट सर्वर ए हैश, मतलब कि अभी मैं रूट से लॉग इन हूँ। अगर मैं इससे क्वेश्चन भी करता हूँ हु एम आई, हु एम आई, क्या बोल रहा है? रूट, यू आर रूट। ठीक है, छोटी छोटी कमांड्स कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल डेट, मुझे डेट दिखाएगा, कैलेंडर दिखाएगा, राइट? डेट है, कैलेंडर है, दिखा रहा है। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मेरी रिक्वायरमेंट है, चलो भाई डेट कमांड तो होगी, क्या इस कमांड के साथ और भी ऑप्शंस हम यूज कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। हर कमांड के साथ उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऑप्शंस गिवन होते हैं कि डेट कमांड के साथ आप क्या चाहते हो। मैंने डेट कमांड किया तो मुझे ये आउटपुट मिला, ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि डेट कमांड के साथ कुछ ऑप्शंस में यूज करूंगा। फॉर एन एग्जांपल कि डेट हाइफन हाइफन एच, मतलब कि HELP, हेल्प। जहां समझ में ना आए कि क्या ऑप्शन यूज करें, ऑप्शंस कहाँ से मिलेगा, आप सिस्टम से हेल्प लेंगे। डेट हाइफन हाइफन हेल्प एंटर करेंगे, डेट कमांड की पूरी हेल्प आ जाएगी। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ऊपर, यहाँ पे आपको इजीली विजिबल है %R, A, B, C, D, पूरा ये सब फॉर्मेट्स हैं जो इसके साथ यूज हो सकते हैं। ये ऑप्शंस हैं, उनका यूसेज कैसे दे रखा है। पहले आप डेट कमांड पुट करोगे, फिर ऑप्शंस यूज कर सकते हो, उसके बाद अपना फॉर्मेट। ऑप्शन के बिना भी फॉर्मेट यूज हो सकता है, प्लस का साइन देके यूज हो रहा है। हमने क्या किया यहाँ पे, मैंने कहा डेट, अब मैंने ले लिया +%R, ठीक है। अब यहाँ प्लस लगाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि मुझे इसको बताना पड़ेगा। अगर मैं प्लस नहीं लगाऊं और एंटर करूं तो इनवैलिड डेट बताएगा। क्यों बताएगा? क्योंकि इन्हें फॉर्मेट समझ नहीं आया। फॉर्मेट जैसे लगाना है आप वैसे ही लगाओगे। प्लस का मतलब है कि डेट के साथ इस फॉर्मेट को यूज करो। डेट मेरी कमांड हो गई और +%R मेरा फॉर्मेट हो गया। एंटर आ गया डिफरेंट फॉर्मेट में, एंटर डिफरेंट फॉर्मेट में, ठीक है। ऑप्शंस इस तरीके से हमारे यूज होंगे, ये फॉर्मेट्स, ठीक है। ये डेट की रिक्वायरमेंट है ना कि डेट मुझे, मैंने डेट का लिया तो मुझे इस तरीके से डेट दिखा। मैं %R ले रहा हूँ, %X ले रहा हूँ, तो मेरे मॉडिफिकेशन होगा। क्लियर है? हेलो, Yes, यस sir. सर, यस सर। ओके। डेट हो गया, कैलेंडर हो गया, गाइस बहुत सारी चीजें। अब हम एक छोटी सी कमांड की और बात करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कि आप लोग को पता है कि अगर मुझे किसी फाइल के अंदर के कंटेंट को देखना हो तो मैं क्या कमांड यूज करूँ? एनी वन? नो, Cat, नो LL, नो। Cat. cat, फाइल के कंटेंट को शो करने के लिए, व्यू करने के लिए हम कैट कमांड का यूज करते हैं। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए, और LL का मतलब होता है लॉन्ग लिस्ट। चलिए, हमने क्या किया, कैट स्लैश के अंदर ETC, थर्ड चैप्टर में आप हायरार्की कॉन्सेप्शन पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपको स्लैश की नॉलेज मिलेगी कि भाई स्लैश मेरा क्या होता है, इसके अंदर @C डायरेक्टरी कैसे, 20 टाइप्स होते हैं। चैप्टर नंबर 3 में हम क्लियर करेंगे। /@C स्लैश पासवर्ड मेरी फाइल है जो @C नाम के फोल्डर में है, और @C मेरा स्लैश के अंदर, स्लैश नाम के फोल्डर में, ठीक है। एंटर, जिस फाइल को देखना है आप इजीली देख सकते हो। मैंने देख लिया इसका आउटपुट। फॉर एन एग्जांपल मैं चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कोई मेरी फाइल्स है, फाइल्स मेरी है, लाइंस के नाम से फाइल्स पड़ी हुई है। Sir, LL क्या करता है? समझ नहीं आया LL का। हाँ जी फाल्गुनी, आप कुछ कह रही हैं, बताइए। हेलो। LL का मतलब लॉन्ग लिस्टिंग। लॉन्ग लिस्टिंग का मतलब है कि विद परमिशन, ग्रुप, रूट ओनरशिप सबके साथ दिखाएगा। अगर मैं नॉर्मल LS करता हूँ तो सिर्फ लिस्ट आउट कर देगा, दैट्स इट। नहीं आया सब भी समझ सर। LS-L कर सकते हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? सर LL को फिर से बताना सर। LL का मतलब होता है लॉन्ग लिस्टिंग। फॉर एन एग्जांपल कि रूट की डायरेक्टरी में क्या क्या कंटेंट है मुझे देखना है। कंटेंट का मतलब रूट की डायरेक्टरी में क्या क्या चीजें हैं, कौन सी फाइल है, कौन सी डायरेक्टरी है। PWD प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी, अभी मैं कहा हूँ /रूट, मतलब रूट की होम डायरेक्टरी में यहाँ पे कौन कौन सी फाइलें रखी हैं, क्या क्या चीजें हैं देखना है, तो मैं क्या करूंगा, LS करूंगा, तो वो मुझे इस तरीके से लिस्ट होगी।
बट ओके मुझे इन फाइल्स की, इन डायरेक्टरीज की परमिशंस भी देखनी है, इनके ओनरशिप भी देखना है कि बेसिकली इनका ओनर कौन है, ग्रुप परमिशंस क्या है, सारी चीजें देखनी है। तो मैं एलएल करूंगा, मतलब कि लॉन्ग लिस्टिंग। लॉन्ग लिस्टिंग में आप देखो ये मेरी सारी रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन दिखा रहा है, ओनर रूट है, ग्रुप रूट है, ऑल ऑफ द थिंग्स, डेट, मॉडिफिकेशन, टाइम, ऑल ऑफ द थिंग्स। क्लियर? ये होता है ओके listing। एक और ऑप्शन है ls हाइफन एल भी कर सकते हैं, तो भी सेम आउटपुट आएगा। ठीक है, ओके, क्लियर है फाल्गुनी? ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कैट की, तो यहाँ पे मेरे लॉट्स ऑफ फाइल्स गाइस, लाइंस भी हैं। तो मैं लाइंस वाली फाइल्स को अगर देखना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, कैट लाइंस नॉर्मल। यहाँ कोई स्लैश, कोई पाथ देने की जरूरत क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ कि मैं उसी लोकेशन पे हूँ जहाँ पे मेरी फाइल है। कैट लाइंस, लाइंस मिल गई, कैट कर दिया उसने। कैट का मतलब सिर्फ व्यू करेगा, यू आर नॉट एबल टू एड इट इन दैट फाइल। कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ VIM एंड VI, टेक्स्ट एडिटर के थ्रू कर सकते हैं, बट कैट सिर्फ, कैट का काम है विजिबल शो करना। क्लियर है? अब प्रॉब्लम किधर है, मैंने कहा कैट स्लैश एचसी पासवर्ड, दिक्कत ये आ रही है कि देयर इज अ लॉट्स ऑफ फाइल्स, फाइल्स के अंदर बहुत सारा कंटेंट है, मुझे इतना कंटेंट नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ लास्ट की कुछ लाइंस चाहिए थी जो मैं अपने यूजर्स वगैरह देख पाऊँ, राइट? तो कैसे करेंगे, कैसे? केट की जगह हमने क्या किया, TAIL टेल स्लैश एचसी पासवर्ड। बाय डिफॉल्ट कितनी लाइंस देते हैं, 10 लाइंस प्रोवाइड करेगा, लास्ट से 10 लाइनें प्रोवाइड करेगा बाय डिफॉल्ट, अगर नॉर्मली टेल करके फाइल का लोकेशन देते हो तो। ठीक है, रिक्वायरमेंट है नहीं सर 10 भी नहीं चाहिए हमें, तो सिर्फ 2 ही लाइन चाहिए थी लास्ट की, पूरा डेटा नहीं चाहिए हमें, लास्ट की 2 लाइन चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन यूज करोगे, L hyphen 2 नंबर ऑफ हाइफन n नंबर 2, लास्ट की 2 ही लाइन दिखाएगा। अब फ्रॉम द टॉप देखना है तो नहीं, नो नो नो, कोई प्लस एन नहीं भाई, फ्रॉम द टॉप, ये तो सबसे लास्ट से था, अगर मुझे सबसे ऊपर से देखना है तो फाइल के सबसे फ्रॉम द टॉप कंटेंट्स देखने को, एनीवन। टेल का अपोजिट क्या होता है, बस बाय डिफॉल्ट कितनी लाइंस देगा, अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट है मेरी कि भाई मुझे क्या करना है, फ्रॉम द टॉप ओनली 3 लाइंस की रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या करूँ, head hyphen plus 3 ++3 ओ भाई, मैंने सॉरी n माइनस n 3 हाइफन n मेरा ऑप्शन है नंबर्स ऑफ लाइन के लिए, यहाँ पे जितनी लाइन न्यूमेरिक मेंशन करोगे 3 4 5 6 10 शो कर देगा। ठीक है, अच्छा दैट आउटपुट फ्रॉम द टॉप। गाइस ये क्लियर हुआ? हेलो इससे ऑल, Yes, sir, clear है। चलिए जी, ठीक है। ये छोटी छोटी कमांड्स है, हेड है, टेल है, फिर रिकॉर्ड देखने के लिए कैलेंडर है, डेट है, आपके पास एक हिस्ट्री कमांड आती है, दैट इज आवर द हिस्ट्री कमांड, कितनी कमांड्स हमने रन की, दे ऑल ऑफ द थिंग्स। ठीक है, तो ये छोटी छोटी कमांड्स थी जो हमने इसमें रन करने थे, कि हाँ हम छोटी छोटी कमांड्स को रन कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, डेट कमांड, कैल कमांड, ठीक है, एक टैब भी है जो हेल्प के पर्पज से है। ठीक है, दिस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, फिर लैब, फिर समरी। समरी में क्या है, टेल है, हेड है, टैब है, हेल्प है। ठीक है, अब बैश शेल कम्युनिटी है। स्टार्टिंग के जो 2 चैप्टर्स हैं गाइस, उसमें बहुत ही सिंपल चीजें बता रखी हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर है गाइस? क्योंकि यस सर पेपर से है, डेस्कटॉप वगैरह से है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम अभी तक, एनीवन? अभी तक जितना हुआ उतना हो जाएगा। यस यस सर चलो ठीक है, बुक विजिबल है? हम्म Okay. Now here is chapter number 3, managing file from the command lines। ठीक है, command lines के थ्रू फाइल्स को कैसे मैनेज किया जाए। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, पहले तो हायरार्की कॉन्सेप्शन पढ़ेंगे,
फाइल की हायरार्की क्या है, उसके बाद से कौन सी डायरेक्टरी में क्या चीजें होती हैं, कौन सी फाइल में, बिकॉज ऑफ की आफ्टर इंस्टॉलेशन, जैसे कि विंडोज में आपको पता है, एक काम कर, लोकल डिस्क सी में चला गया, लोकल डिस्क डी में चला गया, इसमें ये मिल जाएगा, उसमें वो मिल जाएगा, ये सारी चीजें पता है ना। अगर हमने कोई कंटेंट डाउनलोड किया तो डाउनलोड में मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंट में मिलेंगे। तो ये हायरार्की विंडोज की हमें पता है कि अगर मुझे फाइल फाइंड करनी है, मुझे इस टाइप का डेटा फाइंड करना है, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, राइट। एज इट इज लिनक्स मशीन में क्या है, आफ्टर इंस्टॉलेशन आपको हायरार्की पता होनी चाहिए। अगर किसी फाइल की, किसी सर्विस की कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो आप कौन सी डायरेक्टरी में जाओगे, लॉग्स चाहिए कहाँ जाओगे, यूजर्स की डायरेक्टरी चाहिए तो कहाँ जाओगे, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन इट। ओके, अगर मैं इसकी हायरार्की कॉन्सेप्शन बताऊं तो कुछ इस तरीके से, बुक विजिबल है, Yes. कुछ इस तरीके से हायरार्की कॉन्सेप्शन है इसका। हायरार्की कॉन्सेप्शन में सबसे पहले क्या दे रखा है, स्लैश, जहां से हमारे सिस्टम की स्टार्टिंग होती है, दिस इज द मेन, ये पहला मेन दरवाजा है, ठीक है। और ये आपके रूम्स है, फॉर एन एग्जांपल दीज आर द होटल्स, रूम है, ये आपका मेन डोर है, यहीं से एंट्री करोगे। अब यहीं से एंट्री करोगे स्लैश से, अगर स्लैश से मैं रूट में चला गया तो इस डायरेक्टरी का क्या नाम पड़ेगा, राइट। अगर ये यहाँ से यहाँ चला गया तो ये स्लैश रूट है, तो इस डायरेक्टरी का क्या नाम पड़ेगा गाइस, स्लैश रूट। ये होगा, स्लैश रूट ही पड़ेगा, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल अब मैंने क्या किया, स्लैश, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, स्लैश से मैं अंदर आया, स्लैश से अंदर आने के बाद मैं कहाँ जा रहा हूँ, स्लैश के बाद मैं जा रहा हूँ होम में, होम के जा रहा हूँ एव नाम के यूजर में। तो इस जो यूजर है इसकी लोकेशन क्या होगी, हाँ जी क्या होगी, हाँ स्लैश होम रूट। स्लैश एव। क्लियर है गाइस, यस। दो स्लैश होते हैं, ठीक है। मैं क्लियर कर दूं, दो स्लैश होते हैं, जो ये स्लैश है वो एंट्री के लिए जहां से हमारी सिस्टम की स्टार्टिंग हुई है, जहां से मेरा हायरार्की कॉन्सेप्शन स्टार्ट होता है। दूसरा स्लैश मेरा वो होगा जो पार्टीशन बांट रहा है दो डायरेक्टरीज को, मतलब स्लैश होम, उसके बाद से फिर यहाँ पे आएगा स्लैश एव। ये वाला स्लैश अलग है, ये वाला स्लैश डिवाइड कर रहा है होम को और एव की डायरेक्टरी को। ये स्लैश हमारा स्टार्टिंग है गाइस, क्लियर है। अब नेमिंग में तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, मतलब पाथ में, कि स्लैश रन में जा रहा हूँ स्लैश रन, या स्लैश एटसी जा रहा हूँ एटसी के बाद जैसे मैं पार्ट्सवर्ड में गया था, मतलब कि स्लैश से मैं सीधा कहाँ गया, एटसी नाम की डायरेक्टरी में गया, डायरेक्टरी में जाने के बाद एटसी नाम के फाइल में गया, तो उसके बीच में भी स्लैश लगा था जो एटसी को और पासवर्ड फाइल को डिवाइड कर रहा था। क्लियर है कि कहीं कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है तो फिर से स्टार्ट करेंगे इस हायरार्की कॉन्सेप्ट, बताइए। हेलो, सर अगर बिन में जाना होगा, बिन में कौन से बिन में, दो बिन है यहाँ पे बताइए, जो यूएसआर बिन है, राइट साइड में, लोकल के जस्ट पहले, लोकल्स के लेफ्ट में, लोकल के लेफ्ट में, हाँ ठीक है। बिन, इसमें अगर जाना होगा तो फिर पहले वाले स्टेप पे, जैसे रूट से जाना है नहीं, तो डायरेक्ट नहीं जा सकते, एक सिंगल स्लैश के बाद बिन पे, एक सिंगल स्लैश के साथ बिन पे आप इस पे जा सकते हो, जिस वाले फर्स्ट वाले पे। फर्स्ट पे जा सकते हो। रूट का मतलब क्या है कि आप जब रूट से लॉग इन होते हो तो सिर्फ आप रूट की होम डायरेक्टरी में आ जाते हो। जब हम्म आप किसी लोकेशन का पाथ डालोगे तो आप यहाँ से बाहर निकल जाओगे और उसके बाद अपना काम करोगे। रूट इज जस्ट लाइक अ, फॉर एन एग्जाम्पल है कि भाई अगर मैं होटल में हूँ, ये हम्म मेरा रूम है, ठीक है, अब हम्म ये मेरा रूम है, तो मैं बाहर से आऊंगा, आने के बाद ये मेन दरवाजा स्लैश यहाँ से एंटर करूंगा और अपने रूम में चला जाऊंगा, राइट। हम्म अगर आप कह रहे हो कि सर मुझे इसमें जाना है, तो इसमें जाने के लिए मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, हम्म मैं अपने रूम से बाहर निकलूंगा, बाहर निकलने के बाद फिर मैं किस में जाऊंगा, यूएसआर में जाऊंगा, और हम्म यूएसआर में जाने के बाद फिर मैं बैन में जा सकता हूँ, राइट। तो अगर बिन बिन के लिए करना है तो फिर स्लैश रूट स्लैश नो यूएसआर, नो नो, स्लैश रूट हम करेंगे ही क्यों जब मुझे बाहर ही बाहर जाना है तो। नहीं स्लैश यूजर एंड देन स्लैश यूजर स्लैश बिन। एब्सोल्युटली राइट, क्लियर, ओके। बिल्कुल ऐसे ही। टेम्प के अंदर जाना है इस वाले में, तो आप क्या करेंगे, स्लैश वैर, वैर के बाद स्लैश, क्लियर। क्लियर सर। आपको इशू तो नहीं है, नो सर। ठीक है गाइस, ऑल क्लियर, के किसी के माइंड में कंफ्यूजन चल रही है तो अभी क्लियर बताएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हायरार्की कॉन्सेप्शन। आपको कंफ्यूजन हो, जो कुछ भी हो, सारी चीजें इस पे ध्यान देनी पड़ेगी। किस बिन से,
दोनों की लोकेशन अलग है भाई। इस बिन से इस बिन के लिए आना हो तो वही करेंगे हम, यहाँ से बाहर निकलेंगे, उसके बाद स्लैश में तो रहेंगे ना भाई, दरवाजे के अंदर रहेंगे तभी तो कोई भी रूम में जा सकते हैं हम। तो स्लैश में रहेंगे, आप इस बिन से बाहर आएंगे, बिन आने के बाद स्लैश से आप सीधा जाएंगे यूएसआर, यूएसआर के बाद bin में चले जाएंगे। तो ये बनेगा स्लैश नहीं, ये बनेगा स्लैश यूएसआर स्लैश बिन, क्योंकि बिन तक आने के लिए आपको यूएसआर तो जाना पड़ेगा ना, बिना यहाँ पे जाए कैसे आ जाओगे इसमें। इस बिन से सेम हाँ जी, सेम कमांड यूज होगी। कमांड्स तो एक ही होती है ना, सीडी चेंज डायरेक्टरी, और जिस डायरेक्टरी में जाना है उस डायरेक्टरी में। अभी आपको दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल, पहले ये थोड़ा सा हायरार्की कॉन्सेप्शन। गाइस दीज आर आवर इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। क्या है, यूएसआर है। यूएसआर के अंदर क्या होता है, हमारे इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, शेयर्ड लाइब्रेरी होती है, ठीक है, रीड ओनली डेटा रहता है। इसके अंदर हमारी 3 फाइल्स मिल जाते हैं, बिन, एस बिन और लोकल, ठीक है। बिन के अंदर क्या होता है, यूजर्स की कमांड होती है, मतलब लोकल यूजर्स, नॉर्मल यूजर्स। एस बिन में क्या होता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स कमांड होती है, ठीक है। और लोकल के अंदर लोकली कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं। क्लियर है? यस सर। ओके। स्लैश एटसी के अंदर हमारी पूरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, दे ऑल ओवर। हेलो हेलो। सर ये यस टेम्प सर। फाइल जो होती है इसमें ऑटोमेटिक ये 10 डेज बाद डिलीट हो जाएगी क्या? हाँ हाँ, उसके बारे में बात करेंगे। 2 टेम्प फाइल होती है, दोनों की चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। यस। बताइए, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम एटसी पे गाइस। एटसी के अंदर क्या दे रखा है, हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमारे सिस्टम की। सिस्टम की कहने का मतलब है कि सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन कोई भी आपको ढूंढनी हो तो आप कहाँ जाएंगे, हिस्ट्री में। चाहे वो यूजर की इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो यूजर का पासवर्ड हो, चाहे वो अपाचे की सर्विस हो, चाहे एनी काइंड ऑफ सर्विस की कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी सर्विसेज की कॉन्फ़िगरेशन आपको एचसी के अंदर मिलेगी। मतलब ये समझ लीजिए कि ऑल ओवर सिस्टम की कोई भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको ढूंढनी हो तो कहाँ जाएंगे आप, यस स्लैश स्लैश हिस्ट्री में। var के अंदर क्या होता है, मेरा वेरिएबल डेटा होता है, जैसे कि जो डायनेमिकली चेंज होता है, जैसे मेरा डेटाबेस हो गया, कैशे डायरेक्टरीज हो गई, लॉग्स फाइल हो गई, ठीक है। एट द टाइम ऑफ बूट डायनेमिकली चेंज होती रहती है। लॉग्स फाइल क्या होता है, जैसे मेरी सिस्टम एक्टिविटी होगी, लॉग डायनेमिकली चेंज होता रहेगा, है ना, जनरेट होता रहेगा, कैशे फाइल जनरेट होती रहेगी, डेटाबेस मेरा जैसे रहेगा। ये सारी चीजें हमें वैर में मिलेंगी। जैसे वैर में जाओगे लॉग मिलेगा, वैर में और भी चीजें मिलती हैं, ठीक है। तो मतलब डायनेमिकली चेंज होने वाली जो चीजें हैं, जो मेरे वेरिएबल डेटा होता है, वो सब मेरा var में मिलेगा। स्लैश रन के अंदर मेरा रन टाइम डेटा होता है। स्लैश रन के अंदर मेरी आईएसओ मिल जाएगी, रन के अंदर मेरी प्रोसेस आईडीज मिल जाएंगी, लॉग फाइल्स मिल जाएंगी, बहुत सारी चीजें जो एट द टाइम ऑफ बूट क्रिएट करने टाइम रिक्रिएटेड होती है। सिंपल सी बात है, जब मैं बूट करूंगा तो मेरे फिर सिस्टम स्टार्ट करेगा, नए प्रोसेस स्टार्ट करेगा, नई आईडीज देगा। सिस्टम को मैंने बंद कर दिया, सारे प्रोसेसेस खत्म, ठीक है। अब मैं फिर से सिस्टम को स्टार्ट करूंगा तो न्यू प्रोसेस आईडी मिलेगी हर मेरी प्रोसेस को, ठीक है। तो वो मेरा रन टाइम प्रोसेस हो गया। स्लैश होम के अंदर क्या है, स्लैश होम एक ऐसी डायरेक्टरी है जिसके अंदर मेरे रेगुलर यूजर्स की डायरेक्टरी होती है, जिसके अंदर वो अपना पर्सनल डेटा और कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टोर करते हैं। कौन, फॉर एन एग्जांपल मैं रूट हूँ, मैंने एक यूजर ऐड कर दिया साहिल के नाम से, मैंने एक यूजर ऐड कर दिया विशाल के नाम से, तो ये जो यूजर्स मैं ऐड करूंगा उनकी डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली स्लैश होम के अंदर क्रिएट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब विशाल अपने शेल से लॉगिन करेगा, मतलब विशाल आएंगे, लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद वो फाइल बनाएंगे या कुछ भी करेंगे अपने शेल पे, वो सारा डेटा कहाँ पे जाएगा, स्लैश होम के अंदर स्लैश विशाल में। गाइस क्लियर है? यस। ओके। उसके बाद स्लैश रूट आपने देख ही लिया, स्लैश रूट में क्या दे रखा है, ठीक है। ये होम डायरेक्टरी है हमारे सुपर यूजर की, एडमिन की, ठीक है। अब आते हैं हम टेम्प पे। टेम्प क्या है भाई, टेम्पररी फाइल्स पे है।
दो टेम्प फाइल आपने देखी होंगी, एक स्लैश var के अंदर टेम्प और एक आउट ऑफ, देखी थी ना दो टेम्प? यस सर। ये देखिए, ये देखी थी, एक ये मेरा टेम्प है और एक ये रहा वैर के अंदर टेम्प, और एक ही मेरा यहाँ पे भी टेम्प दे रखा है। दोनों टेम्प में क्या डिफरेंसेस है गाइस? दोनों टेम्प पे डिफरेंसेस ये है कि जो मेरा मेन टेम्प फाइल है, अगर उसमें कोई चेंज नहीं होता, ये मॉडिफिकेशन नहीं होती है, तो आफ्टर 10 डेज वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। जाएगा। वैर के अंदर टेम्प में क्या है कि अगर उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होते तो आफ्टर 30 डेज वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। क्लियर है गाइस? क्लियर है? यस सर। ठीक है। स्लैश बूट के अंदर वो फाइल्स होती हैं जो एट द टाइम ऑफ बूट हमें जरूरत होती है बूट प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। क्लियर है गाइस? ऑल क्लियर? यस सर। ओके। स्लैश डेव मेरा डिवाइस है जिसके अंदर मेरे हार्डवेयर एक्सेस करता है। फॉर एन एग्जांपल मैं कोई हार्ड डिस्क ऐड करूंगा, स्लैश डेव में आएगा, ठीक है। डेव का मतलब डिवाइस, हार्डवेयर इंटेक करने के लिए। एलवीएम बनाऊंगा, डेव के अंदर मैप होगा। वीडियो बनाऊंगा, डेव के अंदर मैप होगा। स्वैप बनाऊंगा, डेव में होगा। क्योंकि हार्डवेयर स्टोरेज पार्टीशन से रिलेटेड कोई भी न्यू डिवाइस ऐड ऑन हो रहा है वो सब मेरा डेव में जाएगा। क्लियर है? ये हमारी इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज थी जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है। अब क्या करते हैं, मैं आपको तो एक एक बार डिवाइस फाइल का मेंबरशिप प्लीज बताइए ना सर। कौन सा डिवाइस डेव के बारे में स्लैश डेव। देखो, हाँ। जो डिवाइस है ना वो हमारी डिवाइस फाइल्स के लिए होता है। जैसे कि आपने कोई हार्ड डिस्क ऐड की तो आपको देखनी होगी ना कि मेरी कौन सी हार्ड डिस्क है, किधर है, तो स्लैश डेव में जाके आप देख सकते हो। ठीक है। कोई भी ठीक है। डिवाइस ऐड हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, एलवीएम आपने बनाया, कोई भी स्टोरेज पार्टीशन किया, वो सब किसमें मिलेगा? डेव के अंदर जाएगा। ओके। चलिए ठीक है गाइस, ऑल क्लियर? किसी को डाउट है? नो? सर जैसे विंडोज में अभी जैसे हम लोग पेन ड्राइव इंसर्ट करते हैं तो वो अलग से वो फोल्डर बन के आ जाता है माई कंप्यूटर्स में। जी, तो बिल्कुल अलग तो से। वो तो डिवाइस तो एक्सटर्नल डिवाइस तो पेन ड्राइव भी हुई, हाँ, तो डेव में मिलेगी ना आपको, तो वो डेव में मिल जाएगी। बिल्कुल मिल जाएगी। ओके। आप एक चीज का ध्यान रखें भाई, ग्राफिकल मतलब विंडोज में क्या है कि पेन ड्राइव आप डालोगे तुरंत सामने शो कर देगा। हम्म। इसका दूसरा फंडा है, लिनक्स का मतलब है कि जब तक उसको माउंट नहीं करोगे तब तक आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। कोई भी स्टोरेज पार्टीशन आपको यूज करना हो, चाहे वो एक पेन ड्राइव क्यों ना हो, तो पेन ड्राइव को आपको उस फाइल सिस्टम के साथ उस मशीन में माउंट करना पड़ेगा, तभी आप उस पेन ड्राइव को यूज कर पाओगे लिनक्स मशीन में। माउंट क्या होता माउंट है? करना माउंट पड़ेगा। का मतलब एक लोकेशन। फॉर एन एग्जांपल कि मेरी कोई हार्ड डिस्क है, मैं डालूंगा मेरी हार्ड डिस्क ब्लैंक है लेकिन मुझे उसको यूज करनी है, तो मैंने एक डायरेक्टरी बनाई, उस डायरेक्टरी से उस हार्ड डिस्क को माउंट कर दिया। माउंट करने के लिए फाइल सिस्टम चाहिए, ठीक है, कि किस फाइल सिस्टम में आप इसको माउंट करना चाहते हो, वो फाइल सिस्टम मुझे मेंशन करना पड़ेगा। आगे पढ़ोगे आप, अभी तो 2 चैप्टर्स हैं, पूरा पार्टीशन पढ़ा हुआ है, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, सारा सीख जाओगे, टेंशन नहीं है। फाइल सिस्टम क्या होता है, माउंट क्या होता है, कैसे माउंट करते हैं, ठीक है, परमानेंट माउंट कैसे करते हैं, टेम्पररी माउंट कैसे करते हैं, देयर द ऑल ऑफ द थिंग्स, सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, ओके सर। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट्स क्लियर करते रहा करो जहाँ बीच में हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ हायरार्की कॉन्सेप्शन हमने पढ़ लिया, इसके बाद वो क्विज वगैरह दे रखा है। अच्छा, क्विज खेल लेते हैं, मजा आएगा। चलो भाई, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। Which directory contain the present system specify configuration data? ETC। आपके ऑप्शन है etc, एचसी। run और usr। अच्छी। हम्म, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन सबका ये ए ऑप्शन। यस यस सर। ये वाली बात होगी भाई, ये तो एक ने हाथ खड़ा किया, सबने हाथ खड़ा कर लिया। वैसे कोई नहीं करेगा आज। कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो चलो भाई ठीक है, ये करेक्ट है आपका। Which directory is the top of the system's files स्लैश term? जी, स्लैश बी एक रूट आया भाई, बी। चलो बी बी बी। और बताओ भाई, मैं पहले पार्टिसिपेशन स्लैश। समझ ही नहीं आ रहा कि बोल कौन रहा है। सर कुणाल स्लैश बी। कुणाल स्लैश, ठीक है, और ललित बी स्लैश बोल रहे हैं, और सर बी ऑप्शन। बोल रहे हैं रूट, ठीक है।
बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, सबका बी ऑप्शन है। हाँ भाई बी ऑप्शन है, ठीक है, करेक्ट है। और आते हैं, विच डायरेक्टरी कंटेन यूएसआर होम डायरेक्टरी, बी स्लैश होम यूजर्स की होम डायरेक्टरी। बी स्लैश होम यस स्लैश होम स्लैश होम, चलो भाई स्लैश होम, यस स्लैश होम। बताओ जल्दी, स्लैश होम स्लैश क्या, सर स्लैश होम स्लैश होम, सर ठीक है। विच डायरेक्टरी कंटेन टेम्पररी फाइल्स, टेम्प विच स्लैश टेम्प। कंटेन डायनेमिक डेटा सच एज डेटाबेस एंड वेबसाइट्स। अब बताओ, अब बताओ। एक सर बंदा स्लैश बार बोल दे रहे हैं। यूएसआरसी एक ये सारा आंसर आया मेरे पास, दूसरा where sir where एक वेर आंसर आया, आप सब स्लैश वेयर स्लैश वेयर सही है सर। वेर, और डायनेमिक और किसी को नहीं पता। स्लैश वेयर होगा हो गया, यस सर। स्लैश वेर स्लैश वेयर is administrative super users home directory. रूट अब बताओ स्लैश होम के अंदर रूट, सर उसका आंसर क्या है सर? वेयर ही होगा ना? इसका फिफ्थ का हाँ वेर है। यस स्लैश रूट। स्लैश रूट आया, होम डायरेक्टरी बोला है। हाँ सर रूट सुपर यूजर हाँ होम डायरेक्टरी बट सर सर स्लैश रूट एडमिनिस्ट्रेटिव भी तो है, रूट ही होगा। सर रूट होगा सर। सुपर home यूजर के लिए root? तो नहीं स्लैश रूट होगा स्लैश रूट होगा। स्लैश होम के अंदर रूट नहीं होगा, होम डायरेक्टरी है। यस सर एडमिनिस्ट्रेटिव बोला है ना, तो एडमिन तो रूट ही होता है, मतलब हाँ होता है। फिलहाल सर स्लैश रूट ही होगा सर। स्लैश रूट होगा। विशाल सर स्लैश होम या स्लैश रूट हो गया या फिर स्लैश रूट हाँ, होगा ये भाई ठीक है डी नहीं भाई 50 फोन ऑन कॉल। इतनी लाइफ लाइन मिलेगी दो को, एक बोलते रहा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये वाला हाल है भाई, एक बंदा क्लैप करता है साइड से क्लैप करने लगता है, क्या हो गया किसी को पता ही नहीं, रीजन किसी को नहीं पता। बाद पूछते भाई बंदे किसका है। जैसे आपने बताया था ना रूट यूजर जो वो सुपर यूजर होता है, तो हाँ उसके भाई, अकॉर्डिंग तो डी ऑप्शन। ऑप्शन डी करेक्ट है भाई, इस ऑप्शन डी है, बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर है, सुपर यूजर है भाई, उनका अलग कैबिन है। रेगुलर यूजर्स फॉर एन एग्जांपल देखो, सिंपल सी समझने का आपने बिल्कुल सही है कि रूट का मतलब है कि वो ओनर है भाई, मालिक आदमी की तो अलग कैबिन होते हैं ना, एज एन ओनर कैबिन्स है। बाकी एम्प्लॉय के क्या होते हैं, एक हॉल होता है, सेक्टर बटे होते हैं, सब बैठे हैं कि हॉल में, राइट। तो वो सारे यूजर्स हैं, वो हमारा स्लैश होम है, जिस हॉल की बात कर रहा हूँ मैं वो स्लैश होम है। होम के अंदर हर यूजर की होम डायरेक्टरी बनी पड़ी है, अपने अपने सेक्टर पे जाके बताते हैं। स्लैश रूट के लिए अलग डायरेक्टरी है। चलो इसके बाद इनके सॉल्यूशन है। अच्छा 7, विच डायरेक्टरी कंटेन रेगुलर कमांड। अब बताओ, अब समझ में आया। कमांड यूजर बिन सी। सी यूएसआर बिन में देख लो, यूएसआर बिन होगा। तो स्लैश रन हाँ स्लैश क्या, आप क्या कह रहे हैं, कॉन्फ़िगर कमांड पढ़ लो एक ही लाइन का, कितनी देर तक। हाँ जी विशाल, डोंट हैव एनी आइडिया अभी आइडिया आ जाता, बाकी आंसर आ जाते तो। अच्छा शिवानी कोई आइडिया। सर मैंने ये यूजर बिन बोला है। अच्छा आप ही ने यूएसआर बिन बोला है, ठीक हाँ है। यूएसआर बिन। यूजर बिन सही है सर। फाल्गुनी नॉट श्योर। नॉट श्योर, कोई बात नहीं। सचिन कहाँ है भाई, सचिन की आवाज ही नहीं आ रही। हेलो सचिन, है आप क्लास में? यस श्रीवास्तव बच्चे वो भाई सब चैट कर सी
यूजर बिन, ये भाई ऑप्शन ही नहीं है इसमें। सी ऑप्शन मिल रहा भाई जो आपने ऑप्शन चूज किया वो हमारे क्वेश्चन में नहीं है। आप ठीक है, आप यूजर लिख रहे हैं ना, यूजर नाम को तो है ही नहीं डायरेक्टली इसमें। यूएसआर बिन, इसी का ये आंसर है यूएसआर बिन। रेगुलर कमांड्स जो हमारे एग्जीक्यूट होती हैं वो यूएसआर बिन से होती हैं। एस बिन हमारे एडमिनिस्ट्रेटर कमांड्स के लिए होती है। क्या भैया, क्वेश्चन नंबर 8, विच डायरेक्टरी कंटेन नॉन, क्या लिखा है, परसिस्टेंट प्रोसेस रन टाइम डेटा। अब बताओ, विशाल बताए पहले, वन बाय वन बताएंगे, पहले विशाल। सर स्लैश टेम्प। स्लैश टेम्प, ओके, लॉक कर दिया जाए, एक एक खत्म। देन सचिन, सचिन मैसेज करेंगे मुझे पता है। कुणाल बताइए। अभी पढ़ा था, अभी पढ़ा है। सर ये नॉन प्रेसिडेंट का मतलब हुआ सर? नॉन का मतलब, वो तो ये मेरे को तो क्वेश्चन ही देख के आंसर दिख गया। अच्छा, शिवानी, फाल्गुनी। तो टेम्प। टेम्प, ओके। और कोई भाई? एनीवन? फाल्गुनी, कोई आइडिया? वैर हो सकता है। बैर, ओके भाई। और सचिन? तो वायर में ही जाएंगी। बैर में जाएंगे? अरे सर वायर तो ऑप्शन ही नहीं है सर, कौन सा क्वेश्चन? वाह भाई, क्वेश्चन के आंसर दे रहे, आंसर बता के पूछा, अरे क्वेश्चन कौन सा पूछ रहे हो? भाई क्वेश्चन नंबर 8, आंसर बता के पूछ रहे सर, वैसे क्वेश्चन कौन सा पूछ रहे हो? ये सही है। रन टाइम डेटा से जाएगा, सर टेम्प में जाएगा, सी होगा सर। टेम्प से नहीं सर, टेम्प ही होगा। टेम्प टेम्प में जाएगा सर। सर टेम्प सी होगा, होगा। ए होगा। एक एक करके सबको मिलेगा, सबको एक एक करके बोलो। सर कुणाल स्लैश रन। कुणाल स्लैश रन, भाई गलती हो गई, आपने आंसर बताया। भाई क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है, सामने लिखा है स्लैश रन, रन में होगा। रन टाइम डेटा, नाम से ही पता चल रहा है। रन टाइम डेटा जो हमारा करता है नॉन परसिस्टेंट रन टाइम प्रोसेस, क्या होता है जब हम बूट करते हैं, इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि जब हम बूट करते हैं तो न्यू प्रोसेस आईडीज वगैरह भी मिलती हैं। वैर नहीं होगा, वेरिएबल डेटा के लिए होता है। टेम्प टेम्पररी फाइल्स के लिए होता है। एटसी तो वैसे भी नहीं होगा। लास्ट, विच डायरेक्टरी कंटेन इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर, भाई सबसे इजी। 9 बताइए, सबसे इजी, बहुत इजी है पूरे के। सर लाइब्रेरी होगा फिर, तो लाइव लिखा है तो। एक लाइब्रेरी, फाल्गुनी लॉक कर दिया जाए। सर सी होगा सर, सी स्लैश यूएसआर। विशाल? सर बी होगा सर, स्लैश लाइब्रेरी। बी होगा, चलो शिवानी। सर नहीं पता। कोई तो आंसर बता, 4 ऑप्शन है। तो ऐसे तो लाइब्रेरी से LIB, ये बी ऑप्शन हो सकता है। ये एमसीक्यू छोड़ के आती थी क्या? क्योंकि सर ये रन टाइम वाले में भी तो स्लैश रन हो गया, तो फिर इसमें भी LIB हो जाएगा। अच्छा, शिवानी एग्जाम में एमसीक्यू छोड़ के आती थी क्या? नहीं सर, तो कोई तो टिक कर दो। बी ऑप्शन, बी। बी, चलो भाई, बी के साथ 3 ऑप्शन जा रहे हैं। सचिन? मैंने स्लैश यूएसआर बोला सर। हाँ हाँ, आपका अलग रखा है। सचिन? बी ऑप्शन ही रहेगा, लाइब्रेरी फाइल्स में ही जाएंगे। लाइब्रेरी फाइल्स में जाएंगे, ठीक है भाई। अंकेश, आपका क्या कहना भाई? वैर के साथ। आप जाओगे वैर के साथ? भाई ये सबसे अलग है, ये सीधा वैर के साथ है, वेरिएबल डेटा। आप भी बी?
भाई क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़िए आप लोग। विच Installed डायरेक्टरी software. कंटेन इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम। लाइब्रेरीज किस में जाती हैं, किस में जाती हैं, किस में जाती हैं, यूजर। हैं? बताइए। कुणाल सही है। /USR सबसे पहली डायरेक्टरी पड़ी थी भाई यहाँ। इन a US star installed सही software बोला। libraries and including files। सबसे पहला डायरेक्टरी। लाइब्रेरी नाम की तो भी डायरेक्टरी आप लोगों ने यहाँ पढ़ी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ये आंसर। चलो एक बहुत अच्छी चीज, एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ। गाइस अगर मैं डायग्राम के थ्रू, जैसे आपने अब तो बहुत अच्छे समझ गए आप हायरार्की कॉन्सेप्शन से। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था ना उन्होंने, सर टेम्प में जाने के लिए या वार में जाने के लिए किस तरीके से जाएंगे, बढ़िया था। एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है गाइस? एब्सोल्यूट में क्या होता है, जब हम स्लैश से आगे की तरफ बढ़ते हैं। रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि वो उसका रिलेटिव पाथ है, मतलब बैकवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश क्या डिफरेंस है बताते हैं। कंसोल पे एक एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। अगर ऐसे लेके चलूंगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी, एक एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा पूरा। मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ mkdir स्लैश के अंदर राहुल, सोनू, टीना, मीना, टीना मीना सब जोड़ दूं, हद है यार। mkdir/-p मैंने यूज किया है पेरेंट डायरेक्टरी। टेंशन मतलब सीखेंगे अभी आगे। मैंने रवि तक की डायरेक्टरी क्रिएट कर दी। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, cd/। अच्छा एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, अगर मुझे ये टीना नाम की डायरेक्टरी में जाना है तो cd तो मेरी चेंज डायरेक्टरी कमांड हो गई, मैं लिखूंगा क्या इसके आगे गाइस? टीना नाम की डायरेक्टरी में जाना है तो क्या करूं मैं? // सर सर पहले राहुल में जाएंगे, सोनू में जाएंगे, फिर टीना में जाएंगे। फिर टीना में जाएंगे, आ गए। उसके बाद मैं रवि में भी चल जाता हूँ। अभी मैं कहाँ पे हूँ? PWD प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी। देख रहे हो मैं कहाँ पे हूँ? /राहुल के अंदर सोनू, सोनू के अंदर टीना, टीना के अंदर रवि। राइट, देखना चाहते हो शुरू से दिखाता हूँ। cd/राहुल के अंदर मैं आता हूँ। यहाँ देखो सोनू नाम का डायरेक्टरी बना हुआ है, बना है गाइस। सोनू के अंदर में गया, टीना नाम की डायरेक्टरी है, टीना के अंदर गया, रवि नाम की डायरेक्टरी, रवि के अंदर गया, कोई डायरेक्टरी नहीं, 0। PWD प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी। अब ध्यान दीजिए, स्लैश कौन सा स्लैश है? ये मेन गेट है, हाँ जी, मेन जहां से एंट्री हुई है वो मेरा स्लैश है। स्लैश के बाद राहुल है, राहुल के लिए जो सोनू है वो एब्सोल्यूट पाथ है, समझ रहे? सोनू के लिए जो टीना है वो एब्सोल्यूट पाथ है, टीना के लिए रवि एब्सोल्यूट पाथ। बट रवि के लिए जो टीना है वो क्या है? रिलेटिव पाथ है, समझ रहे हैं? और टीना के लिए सोनू रिलेटिव पाथ है, और सोनू के लिए राहुल रिलेटिव पाथ है। क्योंकि रवि तक आने के लिए मुझे टीना पे आना पड़ेगा, राइट? जब तक मैं इस डायरेक्टरी में नहीं आऊंगा तब तक मैं रवि की डायरेक्टरी तक नहीं पहुंच सकता। तो रवि जो है वो टीना से रिलेटिव है। गाइस समझ आ रहा है? So once again एक बार फिर से कर explain. राहुल के लिए सोनू एब्सोल्यूट पाथ, सोनू के लिए टीना एब्सोल्यूट पाथ, टीना के लिए रवि एब्सोल्यूट पाथ। बट रवि के लिए जो टीना है वो रिलेटिव पाथ है, बैकवर्ड, पीछे की तरफ। देख रहे हो? जब तक टीना की डायरेक्टरी में बिना आए आप रवि की डायरेक्टरी में आ सकते हो, मतलब कि ये मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। हो सकता है क्या? पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? जब तक मैं इस डायरेक्टरी में नहीं आऊंगा तब तक मैं रवि तक नहीं जा सकता, बिकॉज ऑफ कि रवि का जो पाथ है वो टीना से रिलेटिव है, वो इसके रिलेटिव है। अगर मैं टीना नाम की डायरेक्टरी को रिमूव कर दूं तो रवि भी रिमूव हो जाएगा, क्योंकि टीना के अंदर ही तो रवि है।
तो रवि के लिए जो टीना है वो रिलेटिव पाथ है, मतलब बैकवर्ड। अगर मुझे पीछे की तरफ आना होगा तो मैं रवि से टीना पे आऊंगा, टीना से सोनू पे, सोनू पे राहुल, राहुल के बाद देन स्लैश। एब्सोल्यूट में क्या होगा, स्लैश से मैं राहुल के गया, राहुल से सोनू, सोनू पे टीना, टीना से रवि। मतलब कि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं एब्सोल्यूट पाथ, बैकवर्ड पीछे की तरफ आ रहे हैं रिलेटिव पाथ। गाइस समझ आया कि कोई क्वेरी है? यस सर। ठीक है, यस और नो प्लीज ऑल। यस। यस ओके ठीक है, शिवानी समझ आ रहा है? यस सर। ओके डन है भाई। ये एब्सोल्यूट पाथ होता है और रिलेटिव पाथ होता है। ठीक है, इस चैप्टर में और भी टॉपिक्स हैं, मेकिंग लिंक्स है, और भी चीजें हैं, करंट डायरेक्टरी, रिलेटिव पाथ, पीडब्ल्यूडी प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी, एलएल लॉन्ग लिस्टिंग, एलएस कमांड है, ये सारी चीजें हैं। अब बेसिकली क्या है कि अब हमने क्या करना है, कमांड लाइंस के थ्रू डायरेक्टरीज को मैनेज कैसे किया जाए ये सीखना है। ठीक है, मैनेज करने का मतलब डायरेक्टरीज बनाना, ठीक है, डायरेक्टरीज को रिमूव करना, दीज टाइप्स ऑफ वर्क। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल कि मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट की mkdir, ये कमांड होती है डायरेक्टरी क्रिएट करने की। mk मतलब मेक, dir मतलब डायरेक्टरी, किस नाम से बनाना है, मैंने कहा admin, एडमिन के नाम से बना दो। एडमिन में जाना है तो क्या कमांड रन करूं मैं? CD हाँ जी, cd देन नो नीड टू स्लैश, बिकॉज ऑफ कि ये डायरेक्टरी मैंने होम डायरेक्टरी में बनाई है, स्लैश में नहीं बनाई। यहाँ पे मैंने कहीं भी स्लैश पुट नहीं किया, मैं नॉर्मली एडमिन में जा सकता हूँ। क्लियर है? सर वन सेकंड, हाँ, बोलिए। स्लैश होता, स्लैश होता तो वो स्लैश में बनता। मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या है। pwd देखो पहले, ये क्या है, स्लैश रूट है। cd स्लैश pwd ये क्या है, नाउ आई एम इन स्लैश। अभी मैं सिर्फ स्लैश में हूं और इससे पहले मैं स्लैश रूट में था, मतलब कि रूट की होम डायरेक्टरी हायरार्की याद है। अभी मैं अपने मेन गेट पे हूँ, मैं किसी भी रूम में जा सकता हूँ, इतने सारे रूम है मेरे पास, देख रहे हो, बूट है, डेव है, बिन है, etc है, होम है, देख रहे हो, रूट है, देयर इज अ लॉट्स ऑफ, राहुल भी है जो हमने अभी क्रिएट किया। ठीक है, टेम्प है, यूएसआर है, शेयर्ड है, इतने सारे रूम्स हैं जिसके अंदर हम जा सकते हैं जी। तो मैं सीडीज करके कहीं भी जा सकता हूँ। नॉर्मल सीडी करोगे अपनी होम डायरेक्टरी में आ जाओगे, मतलब pwd रूट की होम डायरेक्टरी में। ठीक है, इसका मतलब कि आप रूट में हैं। हाँ अभी मैं रूट में हूँ गेट के पास है जी। cd अभी मैं अपने स्लैश के पास हूँ, मैं किसी भी रूम में जा सकता हूँ, अभी मैं रूट में नहीं हूँ, pwd गेट के बाहर है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये स्लैश रूट है और ये स्लैश है, ये दोनों चीजें डिफरेंट है। गाइस क्लियर है? स्लैश रूट का मतलब कि सर आप रूट की होम डायरेक्टरी में हूँ। एंटर कर दियो बस हाँ जी, नहीं, स्लैश रूट का मतलब है कि मैं रूट की होम डायरेक्टरी में हूँ। ठीक है, जो मेरी हायरार्की अकॉर्डिंग रूम डायरेक्टरी स्लैश के जस्ट नीचे, मैं उसके अंदर आ चुका हूँ और अभी एट द टाइम पीरियड मैं अभी स्लैश पे ही खड़ा हूँ, मैं किसी भी रूम में नहीं हूँ। गाइस क्लियर है, कोई क्वेरी है? यस सर। होम पे कब जाएंगे? होम पे अभी जाएंगे, थोड़ी देर में, बस जाने वाले थे। बताओ चले तो आगे, आगे स्लैश होम में। एक चीज, जैसे आप होम पे जा रहे हो सर, सीडी से चेक, हाँ जी, तो ये होम के बाद स्लैश लगा है, इससे होम के बाद जो स्लैश लगा है वो बैक फॉर एब्सोल्यूट पाथ के लिए लगता है, कि अगर इसके आगे आपको जाना हो तो वो ऑटोमेटिकली उसने स्लैश पुट कर दिया। अगर इसको मैं यूज ना भी करूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। cd स्लैश होम ये मैं नहीं भी यूज करूंगा ना तो भी मैं होम में ही आऊंगा। वो एब्सोल्यूट पाथ के लिए होता है कि अगर होम से आगे भी आपको जाना है तो आप देन स्लैश करके जा सकते हो। अब मैं यहाँ करूंगा ll, तो यहाँ मेरे यूजर्स की होम डायरेक्टरी बनी है, डेमो, हैरी, नताशा, सारा। इनका मतलब क्या है, मैं हैरी में आ रहा हूँ। गाइस ध्यान से देखिए, cd हैरी, अभी मैं किस में आ गया, pwd स्लैश होम के अंदर स्लैश हैरी में। याद है बॉब एव मेरे यूजर्स से इन हायरार्की, गाइस याद है ना? यस सर। जी, अभी मैं किस में हूँ, हैरी के अंदर हूँ। लोकेशन देखिए, अब जिस चीज को ध्यान से समझिए जो अभी समझा रहा हूँ। मैंने क्या किया, cd, अब मैंने कहा su मतलब स्विच यूजर, मैं किससे आया, हैरी से लॉगिन हुआ, हैरी अपने सिस्टम से लॉगिन हो गया। अब देखो यहाँ डॉलर आ गया, मतलब कि एक नॉर्मल यूजर ऐड हुआ है ना। हैरी लॉगिन किया है मेरे सर्वर ए मशीन से, डॉलर आ गया क्योंकि ये रेगुलर यूजर है, नॉर्मल यूजर है। अब मैं यहाँ करूंगा pwd, देखो दोनों लोकेशन सेम है, मतलब कि हैरी लॉगिन करके अपने प्लेटफॉर्म पे अपनी डायरेक्टरी में कोई भी फाइल क्रिएट करेगा तो कहाँ आएगी, स्लैश होम के अंदर
हैरी में, अकॉर्डिंग टू हायरार्की जो हमने पढ़ा था, राइट? क्लियर है? हेलो गाइस, क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर कोई फाइल भी क्रिएट करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं टच से फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है? कैसे क्रिएट करते हैं बताएंगे? मैं नॉर्मल क्रिएट फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, टच। यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट कर दी है harry.txt के नाम से, जिसके अंदर क्या लिखा है? अब harry.txt में क्या लिखा है देखने के लिए मैं क्या करूंगा, बताइए शिवानी? कैट। शिवानी? यस सर। हाँ जी, ये harry.txt में कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। अब क्या लिखा है इसको देखने के लिए मैं क्या करूँ? कैट CAT। cat harry.txt दिख गया, दिस इज हैरीज फाइल, राइट? मैं यहाँ से एग्जिट हो जा रहा हूँ। अब मैं कहाँ जाऊंगा? cd/home के अंदर हैरी में, हैरी में आ गया। देखो सेम फाइल है। हेलो गाइस, यस सर। सेम फाइल है। स्लैश के अंदर, होम के अंदर हैरी में आगे सेम फाइल, कंटेंट चेक करो, दिस इज हैरीज फाइल। बिल्कुल सेम, एक्यूरेट, वही सारी चीजें मेंशन्ड है, राइट? क्लियर है? कोई डाउट है गाइस? समझ आया जो हमने अभी किया? यस सर। जी। तो ये हायरार्की कॉन्सेप्शन है किसी भी लोकेशन पे जाने के लिए। चलो अब डायरेक्टरी बनाना देख लिया, mkdir के थ्रू हम डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, राइट? ओके, अब हम क्या करेंगे? रिमूव करने के लिए क्या करते हैं? RMDIR, ठीक है? RMDIR से मैं रिमूव करूंगा कौन सी डायरेक्टरी को? कौन सी डायरेक्टरी अभी बनाई है? हैरी। हैरी। डायरेक्टरी थोड़ी रिमूव करेंगे भाई, उसकी होम डायरेक्टरी है, उसके अंदर उसका डेटा है, वो नहीं आ सकते। अभी हमने mkdir के थ्रू एडमिन बनाई है, RMDI। लेकिन एक काम करते हैं, पहले CD एडमिन में चलते हैं। मैं एडमिन में आ गया, PWD/रूट के अंदर /एडमिन। अब समझ में आ रहा है? रूट की होम डायरेक्टरी में एडमिन नाम का डायरेक्टरी है, राइट? यस सर। जी। यहाँ पे फाइल बनाइए, टच। टच का क्या मतलब है सर यहाँ पे? टच से टाइम स्टैम्प चेंज करते हैं, एम्प्टी फाइल भी बनाते हैं, बताएंगे। बन गई एम्प्टी फाइल, इसके अंदर कुछ होगा नहीं, खाली है ये, देखो कुछ नहीं है, खाली है। एक नॉर्मल फाइल बनाने के लिए मैंने यूज किया। अब RMDIR एडमिन रिमूव हो जाएगा डायरेक्टरी। हाँ जी, बताइए बताइए विशाल, फाल्गुनी। सर एडमिन के आगे स्लैश लगेगा ना? नहीं, एडमिन के आगे स्लैश क्यों लगेगा? मुझे डायरेक्टरी रिमूव, बताइए हो जाएगी? RMDIR कमांड है, रिमूव डायरेक्टरी। सर हो जाएगी सर। भाई RMDIR कमांड से सिर्फ एम्प्टी डायरेक्टरी रिमूव होती है जिसके अंदर कोई भी फाइल और कंटेंट अवेलेबल, बट इसके अंदर अभी मैंने एक फाइल क्रिएट की है, ठीक है? तो वो रिमूव नहीं होगी जब तक वो फाइल को रिमूव ना करें। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टरी और फाइल दोनों ही रिमूव्ड हो जाए, उसके लिए क्या क्वेरी है? सिंपल सी क्वेरी है, RM-R का मतलब होता है रिकर्सिव, का मतलब डायरेक्टरी एज वेल एज कंटेनिंग फाइल्स, RM-R, ठीक है? किसको करना है? एडमिन के, इसको RM-R एडमिन को खाली कर दोगे तो भी हो जाएगा, सिर्फ फाइल को करना है तो फाइल का नाम भी मेंशन कर दो। सर -R क्या बताया सर? रिकर्सिव, देखो रेगुलर फाइल रिमूव कर दो, डायरेक्टरी रिमूव, एडमिन का, यहाँ कहीं भी एडमिन नाम की डायरेक्टरी दिख रही है? नहीं। आर का मतलब होता है रिकर्सिव, मतलब कि डायरेक्टरी एज वेल एज कंटेनिंग फाइल्स। क्लियर है? हेलो गाइस, क्लियर है?
यस सर। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं RMDIR हमने देख लिया, RM-R भी हमने देख लिया, कॉपी बनाते हैं, फाइल्स को कॉपी करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली क्रिएट करते हैं MKDIR, ठीक है, न्यू डेटा के नाम से, ठीक है, क्रिएट हो गई न्यू डेटा के नाम से, यहीं पे होगी, ये रही, हो गया क्रिएट। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, इस फाइल को, लाइंस वाली फाइल को मुझे न्यू डेटा के अंदर डालना है, मतलब कॉपी कर रहे हैं, नॉर्मल कॉपी कर रहे हैं, कैसे, CP CP कॉपी करेंगे लाइंस वाली फाइल को, कहाँ पे, मैंने कहा न्यू डेटा के अंदर, क्लियर है, देखो कितनी छोटी सी कमांड है, CP कॉपी, किसको कॉपी करना है, लाइंस वाली फाइल, लाइन्स को। कहाँ पे कॉपी करना है, न्यू डेटा के अंदर, होगी कॉपी, CD न्यू डेटा, जैसे अभी आपने कॉपी की हाँ। कॉपी लाइंस, क्योंकि लाइंस को आपने कॉपी करना न्यू डाटा, राइट? हाँ हाँ, तो ये आपने रूट लगा रखा स्लैश और नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, डिस्प्ले में। इसको अगर हम फर्स्ट यहाँ पे यूज करते नहीं नहीं नहीं, तब प्रॉब्लम है ना भाई, वो लोकेशन चाहिए होती है ना, फर्स्ट स्लैश का मतलब दूसरा होता है, और ये जो स्लैश दिखा रहा है उसका मीनिंग दूसरा है, मैंने पहले क्लियर किया, इसका मतलब है कि ये दो डायरेक्टरीज को आपस में बांट रहा है, जो फर्स्ट स्लैश है तो आपका मेन गेट है, दरवाजा है, आपने वहाँ फाइल थोड़ी बनाई है, आप तो रूट के अंदर हो, आपने यहाँ फाइल बनाई है, तो इससे तो आपका कोई रिलेशन ही नहीं है। गाइस आप लोग को तो कोई डाउट नहीं है इसमें? नो सर। ठीक है, कॉपी हो गई, हाँ जी, ओके, कॉपी हो गई जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ, कहाँ से, होम डायरेक्टरी से लाइंस वाली फाइल को, RM बस रिमूव हो गई, बट न्यू डेटा के अंदर मेरा ऑलरेडी अभी भी अवेलेबल है, राइट। एक डायरेक्टरी है मेरी डेमो नाम की, दिख रही है, यस सर। LL कुछ भी नहीं है। अब मैं चाह रहा हूँ कि डेमो में मैं जाऊं, CD डेमो में हूँ, अब मैं डेमो में रह के अपनी किस फाइल को, क्या नाम उसका, न्यू डेटा वाली फाइल को, न्यू डेटा के अंदर जो मेरी फाइल है उस फाइल को कॉपी करना चाहता हूँ यहाँ पे, और इसी डायरेक्टरी में रह के, देन क्या करेंगे, सिर्फ CP न्यू डेटा होगा सर, CP CP स्लैश स्लैश रूट स्लैश न्यू डेटा, क्यों, बिकॉज ऑफ कि भाई आप डेमो में हो, आप यहाँ पे वही लोग अच्छा हाँ। जो यहाँ से प्रेफर करता है, एब्सोल्यूट पाथ, याद है जी, आपको रिलेटिव पाथ तो लेना पड़ेगा ना, उसको क्या पता कि न्यू डेटा कहाँ पे है, उसको बताना पड़ेगा स्लैश रूट की डायरेक्टरी में, बिकॉज आप कहाँ पे हो, आप डेमो के अंदर हो, डेमो के हाँ अंदर से जितनी फाइल्स आगे तक जा रही हैं वो उनको जानता है, लेकिन उनसे पीछे वाले को नहीं जानता, रिलेटिव पाथ मेंशन करना पड़ेगा, राइट। स्लैश रूट के अंदर न्यू डेटा के अंदर एक फाइल पड़ी है लाइंस की, उसको कॉपी कर दो, कहाँ, इसी डायरेक्टरी में, तो हम डॉट यूज करते हैं, डॉट का मतलब क्या होता है, करंट डायरेक्टरी, डेमो के अंदर ही कॉपी कर दो, तो डायरेक्ट डेमो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, स्लैश रूट के अंदर डेमो लिखने की पड़ेगी, डॉट लगा दो, मतलब करंट डायरेक्टरी जहाँ पे मैं हूँ वहीं पे कॉपी कर दो, एंटर, यहाँ पे मेरी कॉपी हो गई, क्लियर है। यस सर। शिवानी, फाल्गुनी, आप लोग को समझ आ रहा है? यस सर। यस चलो ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मूव कमांड यूज करनी है, CD बाहर आता हूँ, मैंने क्या किया, किसके अंदर जा रहा हूँ, न्यू डेटा में, LL मैंने इसको कर दिया रिमूव, मान के चलो मैं यहाँ कुछ फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर ठीक है, 1 2 3 4 4 फाइल्स मैंने कर दी क्रिएट। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, फॉर एग्जांपल जब हम यूज करते हैं RM-R रिकर्सिव फोर्सफुली के लिए, रिकर्सिव के लिए, और उसके बाद मैं देता हूँ जैसे कि न्यू डेटा की डायरेक्टरी मुझे रिमूव करनी है, तो ये कितने सारे क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्टरी में जाना है, यस, रेगुलर फाइल एक लाइन पड़ी है, इसको रिमूव करना है, अब यस नो यस नो यस नो करना पड़ेगा, हर फाइल के लिए पूछ रहा है, मैं सबके लिए नो कर रहा हूँ, हर फाइल के लिए वो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है मेरे से, करना है कि नहीं करना है, अभी भी है क्योंकि मैंने रिमूव नहीं की। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4-5 फाइलें तो मैं कर देता हूँ, व्हाट अबाउट द थाउजेंड्स ऑफ फाइल, एक डायरेक्टरी में अगर मेरी 100 फाइल्स है, मैं तो सुबह शाम यसी नो खेलता रह जाऊंगा, हाँ भाई, राइट है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -R के साथ मैं एक ऑप्शन यूज कर रहा हूँ,
VF, वी का यहाँ पे कोई यूज नहीं है, यूज सिर्फ इतना है कि वर्बोस, वर्बोस का मतलब है कि जितनी फाइल्स आपने रिमूव की हैं वो मुझे शो करो, पहली चीज। F का मतलब होता है फोर्सफुली, नो नीड टू यस और नो, जस्ट डिलीटेड, रिमूव, एंटर। एक लाइन में, एक कमांड में, एक एंटर में कहानी खत्म, राइट? जी। लेकिन भाई ये डेंजरस है। एक कमांड दिखाऊं बहुत खतरनाक वाली, बस क्या है ये, rm-rvf रिकर्सिव वर्बोस फोर्सफुली, एटसी के अंदर जितनी डायरेक्टरीज, जितनी फाइल्स है सब कुछ रिमूव कर दो फोर्सफुली, डजंट मैटर, यस और नो पूछेगा ही नहीं। एंटर कर दिया तो आपके सिस्टम की जितनी कॉन्फ़िगरेशन है सब खत्म, मतलब गोल डब्बा। फिर जो इंस्टॉलेशन ही खत्म, इंस्टॉलेशन काय बात की, फिर तो स्क्रीन दिखेगी काली सी और कुछ नहीं दिखेगा। तो ये रिकर्सिव वर्बोस फोर्सफुली एट द सिनेरियो बहुत डेंजरस कमांड है जब तक इस पे कंप्लीट हैंड्स ऑन ना हो। ठीक है, आप जल्दीबाजी में सोचे यार यस नो कौन करेगा, काम का रिकर्सिव फोर्सफुली मार दे। एटसी के अंदर एक फाइल बनाते हो आप, ठीक है, नॉर्मली फाइल कॉन्फ़िगरेशन फाइल आप बना रहे हो, बनाते हैं, आगे पढ़ेंगे, ठीक है, और मान के चलिए उसको मुझे रिमूव करना है। रिमूव के टाइम पे अगर मैं जल्दीबाजी में आरवीएफ यूज कर लूँ तो फिर ये एटसी खत्म। हाँ भाई, yes, sir. टाइम पीरियड पे तो मेरा एटसी खत्म, एटसी खत्म, सिस्टम खत्म। फिर सीट से उठ जाना, कह देना सिनेरियो मैंने नहीं किया। फिर एडमिन आएगा, लॉग चेक करेगा, कुणाल भाई इधर आ जा, टाइम पीरियड पे आप लॉगिन थे। ये लॉग से बच नहीं सकते भाई, वो तो सांस भी लोगे सिस्टम पे तो भी वो बता देगा कि कुणाल ने इस टाइम पीरियड पे ऐसे किया है। लॉग्स ऐसी चीज है, बच नहीं सकते। गाइस समझ आया? समझ आया? यस yes, सर। sir. किसी के माइंड में ये तो नहीं चल रहा कि सर इतनी खतरनाक है तो बता क्यों रहे हो? हाँ भाई, चलो आज ठीक है। अब एक चीज देखते हैं। अब आपको पता है कि डेमो नाम की डायरेक्टरी में मेरा एक फाइल पड़ा हुआ है, सीडी डेमो। गाइस लिनक्स को यूज करना है तो माइंड को थोड़ा शार्प रखना पड़ेगा, मतलब एक्टिव। 2 मिनट पहले क्या किया, 4 मिनट पहले क्या किया, कहाँ पे मैंने क्या बनाया, कहाँ पे क्या नहीं बनाया, वो सारी चीजें माइंड में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी सीख लिया, हाँ जी ठीक है, अब जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान देते, पीछे का छोड़ दो, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हाँ सर हमने वहाँ पे फाइल बनाई है, हाँ हमने हायरार्की में ये चीज देखी है, तो वो एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव होगे तभी आप करोगे काम। ठीक है, अलग देखो यहाँ पे मेरी फाइल है लाइन्स की, मुझे इसको मूव करना है कहाँ पे, अपनी रूट की डायरेक्टरी में। रूट की डायरेक्टरी कहाँ है, ये है मेरी रूट की डायरेक्टरी, यहाँ पे मूव करना है, pwd कर दो, स्लैश रूट में है ना हम लोग। हम्म, यहाँ समझ में ना आए ना कि सर मैं नहीं पता कहाँ आ गई, ये नहीं पता मैं कहाँ आ गया सर, ये कौन सी डायरेक्टरी है, pwd कर दो, प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी, वो आपको शुरू से बता देगा कि कहाँ से चले थे और अभी कहाँ पे हो। ठीक है, प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी पूछ लो सिस्टम से, वो खुद ही बता देगा कि अभी आप कहाँ पे वर्क कर रहे हो। जहां फंस जाओ, समझ में ना आए, नॉर्मल सीडी दबा के एंटर कर लेना, वो बाय डिफॉल्ट आपकी होम डायरेक्टरी में पहुंचा देगा जहां से आप शुरू हुए थे। ठीक है, yes, sir. क्योंकि इस टाइप के एरर्स आप फंसोगे, इस वजह से मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन क्या है, डेमो के अंदर मेरी एक फाइल है, ठीक है, लाइंस वाली, उसको मुझे अपनी रूट की डायरेक्टरी पे मूव करना है, मतलब वहां से निकाल के यहाँ डालना है, कट पेस्ट समझ लो। दो चीज की रिक्वायरमेंट है, मूव भी होना चाहिए एज वेल उसका नाम भी चेंज करना है, न्यू फाइल रखना है, हो जाएगा। और दोनों एक ही कमांड से करना है, हो जाएगा। mv मूव कमांड, क्या मूव करना है, मैंने कहा डेमो के अंदर लाइंस वाली फाइल है, इसको मूव करना है यहीं पे, किस नाम से करना है, मैंने कहा न्यू फाइल। कमांड क्लियर है? सर तो रीनेम का कोई कमांड नहीं हुआ क्या इसमें? नेम दे तो दिया भाई। मैं चाह रहा हूँ कि लाइंस वाली फाइल को यहाँ पे मूव कर दो, और लाइंस वाली फाइल का नाम क्या रहेगा, न्यू फाइल। अच्छा, रीनेम भी हो गया, मूव भी हो मतलब जो नाम चेंज करना है सिर्फ वो नाम लिख देना है। गया, तो नाम दे दो, उस नाम से फाइल को वहां पे रख देगा। ओके, ठीक है, हमें पता, काम करो, सीडी डेमो में जाओ, एलएस कुछ है, नहीं सीडी आ जाओ।
न्यू फाइल दिख रही है? दिख रही है। साइंस वाली डेटा मेरे कॉपी हो गया, मतलब मूव हो गया न्यू फाइल्स के नाम से। mv कमांड हम मूव करने के लिए करते हैं एज वेल एज रिनेम। ठीक है, क्लियर है गाइस? कुछ कमांड्स हैं जो आपने नोट डाउन कर लो, नोट्स प्रिपेयर करो, जो वेल एंड गुड है आप लोगों के लिए, मैं दिखा दूँ। ठीक है, ये कमांड्स प्रिपेयर कर लो। दिख रही है? क्रिएट डायरेक्टरी, कॉपी फाइल, -r करके रिकर्सिव, मतलब कि डायरेक्टरी तो कॉपी होगी होगी, आपकी रिक्वायरमेंट है कि उनके कंटेनिंग फाइल्स को कॉपी करके मैं किसी न्यू डायरेक्टरी में डाल दूं, तो -r रिकर्सिव के लिए यूज होता है। ठीक है, रिमूव करने के लिए कंटेनिंग फाइल्स -r है। rmdir से एम्प्टी डायरेक्टरी रिमूव होती है। फाइल को रिमूव करने के लिए नॉर्मल rm कमांड चलाओगे, लेकिन वही यस नो तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो f लगा दो, rf, f का मतलब फोर्सफुली, वी वर्बोस लगाया था कि जो डिलीट कर रहे हो दिखो, जैसे कि मेरे सामने दिखा था कि ये रिमूव हो चुकी है। गाइस इतनी चीजें क्लियर है कि कोई कंफ्यूजन है? लेट मी नो। सर फाइल के साथ ऐसा सीन नहीं है कि एम्प्टी है या नहीं है, फाइल कोई सी भी फाइल रिमूव हो जाएगी आरएम से? फाइल रिमूव हो जाए, चाहे उसमें डेटा हो या ना हो। ओके। और बताइए गाइस, क्लियर है? डेस्कटॉप है, शेल्स है, आपने इंस्टॉलेशन किस किस का हो गया भाई? आपका इंस्टॉलेशन हो गया, कंप्लीट डन? शेल ओपन हो गया? ओपन करो उसको, एंटर करो, एंटर करो। किससे लॉगिन हो? रूट से लॉगिन? नहीं नहीं नहीं, ललित से मत लॉगिन। ठीक है, लॉगिन इन अनदर यूजर, रूट से लॉगिन हो डायरेक्टली। हाँ, नॉर्मल यूजर से, नॉट लिस्टेड करो, नॉट लिस्टेड। ठीक है, रूट से लॉगिन करो, एंटर करो, पासवर्ड डालो रूट का, एंटर करो। अच्छा सर, एक चीज और हाँ जी, सर, जो टैब दबाने के बाद जो सर कुछ स्लैश जो मतलब पहले से आ जाता है लिखा हुआ उसमें सर, पहले तो से ये क्या मतलब ये बनाना पड़ता है या फिर देखो, टैब दबाने के इनबिल्ट रहता बाद, जैसे कि मैंने टैब दबाया तो आगे आता चला गया, राइट? है? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वो आपका होगा तो आ जाएगा, नहीं तो आपको बनाना पड़ेगा। बेसिकली टैब का मतलब क्या होता है कि वो हिस्ट्री के हिसाब से चलता है क्या सर? नहीं नहीं, वो क्विक कमांड है। क्विक कमांड का मतलब है कि उसको पता है कि आगे क्या हो रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, कि मैं दिखाता हूँ किस तरीके से। जैसे कि मेरी डायरेक्टरी है, मैंने सीडी सबसे पहले क्या बनाया था, स्लैश के अंदर राहुल, राउट, राहुल के अंदर मैं आ गया, तो राहुल की जब मैं टैब दबाऊंगा ना, तो राहुल के अंदर सिर्फ एक ही डायरेक्टरी है, किस नाम से? सोनू के नाम से। दोनों। क्या पॉइंट कर रहा है? सोनू के अंदर सिर्फ एक ही डायरेक्टरी है, किस नाम से? टीना के नाम से। तो वो टैब करोगे ना तो आते रहेगा, लेकिन हाँ अब तो वो तो मतलब वो सेव हो जाता है ना, मतलब जो हम बनाते हैं वो सेव होता है मतलब। जी जी, जो टीना के नाम से है ना, अब मैं पता है क्या करूंगा, अब यहाँ पे सोनू की डायरेक्टरी में जाऊंगा, यहाँ पे करूंगा MKDIR, ठीक है, ROHIT, रोहित, ठीक है, रोहित के नाम से करूंगा। अब देखो क्या है, जब मैं करूंगा CD स्लैश राहुल, राहुल के अंदर टैब सोनू, सोनू के अंदर टैब दबाऊंगा ना तो आगे नहीं ले रहा, नहीं ले रहा ना। जब दो नहीं। बार मैं टैब दबाऊंगा तो मुझे दो ऑप्शंस दिखाएगा कि ये यहाँ पे तो दो डायरेक्टरी हैं, आपको किस में जाना है, दिख रहा है? ओके, यस सर। अब आ गया रोहित या टीना, मैं कहूंगा टीना में जाना है, अब वो टीना पिक कर लेगा, फिर रवि पिक कर लेगा। तो ये इस तरीके से काम करता है। ये क्विक रिस्पॉन्स है कि आपको नोट नहीं करना पड़ता, आप टैब दबाओगे तो आगे ऑप्शंस दे देता है आपको कि सर यहाँ पे ये सारी डायरेक्टरीज है, आपको किस में जाना है। आप सिर्फ उसका पहला अल्फाबेट लेकर टैप करो, वो सामने पिक कर लो। वो स्मार्ट थिंग है, लिनक्स फास्टर है पिक करने के, कि भाई इसके आगे क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यूजर। फॉर एग्जाम्पल USER, यूजर ऐड, हमें नहीं पता यूजर ऐड कैसे करते, डिलीट कैसे करते, यूजर के बाद ट्वाइस टैप कर दो, वो ऑप्शंस दिखा देगा। टैब दिखा दो, यूजर ऐड, यूजर डेल, यूजर फॉर्मेट, इतने सारे ऑप्शन देती है कि सर आपको कौन सा यूज करना है। मैंने कहा यूजर ऐड, तो ए करके टैप कर दो, ऐड ले लेगा। तो जहाँ पे ऑप्शंस बढ़ जाते हैं ना कि भाई इसके आगे प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, तो आपको टैब दबाओगे तो आपको सारी प्लेटफॉर्म दिखाएगा, या एक ही प्लेटफॉर्म होगा तो आपको लेता चलेगा। ये क्विक रिस्पॉन्स के लिए होता है कि मुझे टाइप लगा, आप दबाओ तो क्विकली हो जाए। ओके, ये चीज होती है। यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है,
ये कौन सा वर्चुअल है? VMware कौन सा? होम ही खत्म कर दो। माय कंप्यूटर इसमें होम होगा ना। वर्क स्टेशन कौन सा 12 है? तभी ऐसा दिख रहा है। अभी कौन सा बनाया? क्लाइंट दोनों बना ली, सर्वर क्लाइंट होस्ट नेम चेंज किया था ना उस टाइम पीरियड में। लोकल होस्ट आ रहा है, ठीक है, इसको बड़ा करना पड़ेगा। कितना ही बड़ा आ रहा है, स्ट्रेच करना पड़ेगा इसको। एंटर फुल स्क्रीन मोड है, सपोर्ट ही नहीं करता। नॉट सपोर्टेड इन लिनक्स नेस्ट। VMware 15 में कर लेते, लेटेस्ट में। इनेबल फीचर्स में टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको इसके लिए। हटाओ। हाँ गाइस, आप लोग का इंस्टॉलेशन हुआ? सर नहीं हुआ है सर, मेरा तो बस बताया ना सर, अभी बस वही इशू चल रहा है कौन सा इशू चल रहा है? सर। वो ISO नहीं हो रहा सर। ISO नहीं हो रहा डाउनलोड कैसे? हाँ पता नहीं सर, वो नेटवर्क एरर, अगर नेटवर्क प्रॉब्लम होता तो नेटवर्क एरर से दे देता सर, लेकिन यहाँ पे 4 बिटन बता रहा है। डाउनलोड करने के बाद ये फोन डाउनलोड करने से नहीं डाउनलोड सर 4 GB 5 GB तक, जैसे कि 7 GB का ये है तो 5 GB तक जाता है, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक फेल हो जा रहा है। कम से कम 5-6 बार मैंने ट्राई किया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई। लास्ट मैंने अभी सब फोन में फिर से लगाया है डाउनलोड में, अभी 4 GB हो तो गया है, देखते हैं कैसे। डायरेक्टली लैब में डाउनलोड करो ना, हॉटस्पॉट सर लेके। नहीं लैपी में ही किया था सर, लैपी में 5-6 बार किया तो वो फेल हो रहा है, तब से मैंने नाइट में क्या नाम है, ललित जरा ओपन करना। मैंने जो लिंक प्रोवाइड किया था उसको ओपन कर दो जरा और डाउनलोडिंग लगाओ। कैंसिल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार लगा के देखो प्रॉब्लम क्या है। फिर जैसे कि मैंने सर गूगल किया फेल्ड 4 बिटन का क्या मतलब है, हाँ जी, तो उसमें ये आ रहा था the error means you don't have permission to download this file from this server. To fix go to website where the file is hosted. रुक जाओ, अभी देख रहे हैं। हाँ डाउनलोड एनीवे करो, हो तो नहीं है डाउनलोड सर नहीं डाउनलोड तो हो रही है सर, मतलब 4-5 GB तक जा रही है, उसके बाद ऑटोमेटिक फेल हो जा रहा है। ये मैं ललित है मेरे बगल में बैठा हुआ, मैं डाउनलोड करवा रहा हूँ। 7 GB डाउनलोड करा, टेंशन मत लो, हो भी गया, हो भी जाएगा। 72 100 MB हो गया, रुक जाओ। ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको डाउनलोड होने में, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा 7 GB। कितना हो गया दोस्त? मेरे सर हॉटस्पॉट से 4 GB तक जाते जाते 3 घंटा 4 घंटा लग जा रहा है। देखो यहाँ हो गया, 200 MB हो गया। कौन सा नेटवर्क है? जियो फाइबर है। जियो इतनी जल्दी देगा? मैंने सर लास्टली इरिटेट हो गया, लैपटॉप बंद करके सर सो गया था रात में। बहुत बढ़िया, इसीलिए नहीं हुआ, सोए क्यों? जगह रहना चाहिए। गाइस ये लोग नोट्स आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा, उसके बाद कल हम बात करेंगे मेकिंग लिंक्स बिटवीन हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक, क्या कॉन्सेप्शन होता है, कैसे। अच्छा, इसमें कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई क्वेरी? नो सर। शिवानी, सर ये रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी? रिकॉर्डिंग लाइक आपको एक, मैंने कल ग्रुप में एक लिंक शेयर किया था, आपको याद हो तो ड्राइव पे उस फोल्डर है, उसके अंदर आपकी सारी वीडियोस मिल गई। फर्स्ट डे मिल गई, सेकंड डे। सर एक बार और सेंड कर दीजिए, मेरे पास मुझे नहीं मिला है। क्या बात कर रहे हो यार, आपको एडिट करने के बाद ही भेजा है, ओके। आप ही के लिए ही भेजा गया था बेसिकली। मैं रीचेक कर लेता हूँ, अगर नहीं होगा तो मैं इससे डाल दूंगा। हाँ एडिट के बाद ही डाली थी, फिलहाल आपको नहीं मिली, देखो ना ग्रुप में ही है। सर ठीक। शेड्यूल मिला था, निशा मैम का शेड्यूल मिला था, शेड्यूल मिला था आपको? नहीं सर, हाँ एक मिनट देख रहा हूँ। मिला आपको? देखो ग्रुप में, ग्रुप ओपन करो पहले आप। शेड्यूल स्टार्टिंग डेट डेज ये आया था, बाकी एक